डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ पैसेज टू इंडिया एज अ मॉडर्न नॉवल. So in this video, I will be discussing different key characteristics, or you can say features, the prominent features of a passage to India, which are relevant with modernism. So first of all, I will be discussing that what are the modern themes of identity and alienation in this novel. Then the fragmentation of truth and perspective, which is a very prominent theme of modernism. Then modern critique of empire and colonialism, followed by a psychological depth and modernist techniques which have been used in this novel. Then we will be talking about religious and spiritual exploration in a modern context, then ambiguous endings and lack of resolution. So these are few of the prominent characteristics of modernism which can be seen in this novel. So let's begin. So A Passage to India was basically it was published in 1924, right in the aftermath of World War First and at the height of British colonial rule in India, as I have mentioned earlier in the previous lectures as well. So it tells the story of a young British woman, Adila, and her journey to India, where her interactions with the Indian people spark a major conflict. So the novel explores the cultural, social, and political tensions between the British and the Indians, as we have mentioned earlier. But beyond that, it's much more than just a historical piece, it's a modern novel in several key ways. So let us start from the first one, which is identity and alienation. So we know that modern novel explore identity and alienation. Foster in this novel, he does not present characters in simple black and white terms. Instead, he delves deep into their inner lives, which shows the complexities of being caught between cultures. कि कैसे एक कल्चर ईस्टर्न है, कैसे एक कल्चर वेस्टर्न है, और जो हमें कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के, राइटर या ऑथर जो है उसने हमें दिखाया है कि क्या किस तरीके से कल्चरल क्लैश हमें इस नॉवल में नजर आ रहा है. Whether it's the Indian characters like Dr. Aziz, who is struggling with his identity as an Indian under British rule, or the British characters. For example, we have an example of Adila and Fielding, who feel alienated in a land that's unfamiliar and hostile to them. यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ. अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो गो बैक टू माय चैनल and you can watch those videos in which I have discussed alienation of Fielding, alienation of Mrs. Moore, alienation of Aziz and alienation of Aziz. तो एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं, एलिनेटेड फील करते हैं, इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम इन द मॉडर्न नॉवल. सबसे पहले अजीज को हम देखते हैं. तो अजीज एलिनेटेड तब फील करता है जब उसको एक्यूज किया जाता है. एडीला उसको एक्यूज करती है और उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है एज अ प्रिजनर, और उसका ट्रायल होता है. तो वहां पर जब वो वहां से निकलता है, ऑल दो ही मस्ट बिहेव हैप्पीली, उसको खुश होना चाहिए, उसको एंजॉय कर सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज को कि वो आजाद हो गया है. लेकिन अब उसका जो ब्रिटिश के साथ ही बिकेम डिसल्यूजेंट, और ब्रिटिश इंक्लूडिंग साइरल फील्डिंग जो उसका दोस्त भी है, तो वो एक तरह से एलिनेटेड फील करता है. एडीला जो है वो एलिनेटेड फील करती है जब उसको स्टार्ट में पता चलता है रोनी हैस्लॉप, ये भी उसकी एक डिसल्यूजनमेंट है कि रोनी हैस्लॉप जो है वो जो एक्सपेक्टेशन उससे लगाए बैठी थी, जब वो इधर आके उसको पता चलता है कि वो तो रियल इंडिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकती इफ शी इज गोइंग टू मैरी सच अ रूड पर्सन, जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, जो एक ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट का आप कह लो एक रिप्रेजेंटेटिव है,
जो इंडियंस को मिस ट्रीट करता है, जो इनको एक इनह्यूमेन मैनर में ट्रीट करता है। तो यहाँ पे वो डिसोलिजेंट भी हुई और अपने आप को वो एलिनेटेड फील करती है फील्डिंग से, सॉरी, रोनी हेस्लॉप से। उसके बाद आप देखते हो कि जब मैराबार केव का जो इंसिडेंट है, उसके बाद एडिला जो है उसको इंडियंस जो हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक्यूज करती है डॉक्टर अजीज को, तो वो यहाँ पर भी एलिनेशन का शिकार है। उसके बाद जब वो अपने लोगों में जाती है और अपने अल्फाज वापस ले लेती है और कहती है कि शी इज नॉट सर्टेन अबाउट व्हाट रियली हैपेंड इन द केव, और वो अपने अल्फाज जब वापस लेके अजीज को बचा लेती है एक तरह से ट्रायल के दौरान, वहां पर ब्रिटिश एलिनेशन फील करती है फ्रॉम द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश जो है वो उनके लिए दे फील एम्बेरस्ड, दे फील ह्यूमिलेटेड, कि भाई ये एक ब्रिटिश खातून है जो पहले अक्यूज करती है और वो अपने अल्फाज वापस ले लेती है। तो जो इतना मोब क्रिएट हुआ और इतने लोगों की जो एक कल्चरल क्लैश हमें देखने में मिलता है इंडियन और ब्रिटिश के दरमियान, उसके बाद ये एक तरह से एक स्लैब था, एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ऊपर आप कह लो एक बार क्वेश्चन मार्क था कि उनका लॉ किस तरीके से है। ठीक है, एक अनफेयर उनका जो जस्टिस है, सिस्टम है, या लॉ एंड ऑर्डर वहां पे है, वो या उनकी अथॉरिटी जो है उसको एक तरह से चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर भी वो एडिला के साथ एक बायकॉट कर लेते हैं। अगर हम फील्डिंग के कैरेक्टर को देखें तो फील्डिंग क्योंकि अजीज का बेस्ट फ्रेंड है और एक ब्रिटिश है, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज अ प्रिंसिपल, और फील्डिंग के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और वो वाहिद ब्रिटिश है जो सपोर्ट कर रहा है। तो वो भी अपने ही लोग जब उसको समझते हैं कि ये तो ट्रेटर है, ये एक ट्रेटर है जो इंडियन को सपोर्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अस, तो ही हैज बीन एलिनेटेड एज वेल। फिर हमें एलिनेशन जो है वो मिसेस मोर के कैरेक्टर में भी नजर आती है, कि जब वो मैराबर केव से आती हैं तो वो जो एक्सपीरियंस करती हैं, वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का हमें इंसिडेंट नजर आता है, कि मिसेस मोर भी एलिनेटेड फील करती हैं। वो अजीज के जो बहुत करीब थी उसके मामले में अब कुछ भी नहीं बोलती और अपनी सोशल लाइफ और वो पॉलिटिकल इश्यूज पे कुछ भी बोलना नहीं चाहती। तो वो कहती हैं कि भाई मैं अब इंग्लैंड वापस जाना चाहती हूँ। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडियन कैरेक्टर्स हैं चाहे वो ब्रिटिश कैरेक्टर्स हैं, इनकी एलिनेशन हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है इस नॉवल के अंदर, विच इज वन ऑफ द की थीम ऑफ मॉडर्निज्म। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो रियलिटी और ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है, एंड अदर मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ अ पैसेज टू इंडिया इज द वे इट प्रेजेंट्स ट्रूथ एज फ्रेगमेंटेड एंड सब्जेक्टिव। मतलब कि मॉडर्निज्म में ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव है, लोगों के अंदर डाउट आ गया है। तो ये फ्रेगमेंटेशन और सब्जेक्टिविटी जो है वो हमें इस नॉवल में बड़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है। अब ट्रेडिशनल नॉवेल्स में क्या होता है कि देर इज ऑफन अ क्लियर ट्रूथ और मॉरल सेंटर, जैसे हम चार्ल्स डिकेंस के नॉवल में देख लें, जेन ऑस्टन के नॉवल में देख लें, लेकिन हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स में देख लें जो रियलिज्म पे बेस करते हैं, सोशलिज्म पे बेस करते हैं, सोशल इश्यूज पे बेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फोस्टर का जो नॉवल है इसमें ट्रूथ जो है वो एल्यूसिव है। फॉर इंस्टेंस, सेंट्रल इवेंट जो है नॉवल का, जिसमें एडिला क्वेस्टेड एक्यूज करती है डॉक्टर अजीज को कि भाई इसने मुझे असॉल्ट किया है मैराबर केव्स में, ये एक हमारे सामने एक एग्जांपल है जहाँ पे ट्रूथ जो है फ्रेगमेंटेड है, शी इज नॉट श्योर अबाउट इट व्हाट रियली हैपेंड बट शी एक्यूज। तो यहाँ पे ट्रूथ जो है बड़ा सब्जेक्टिव है कि उसके लिए ये सच है या वो अनसर्टन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मैराबर केव्स जो हैं वो भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि ये डार्क है, मिस्टीरियस है, यहाँ पे जो इकोइंग साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है। केव्स देमसेल्फ दे बिकम अ सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी या एब्सर्डिटी आप कह सकते हो, इसको मैं एब्सर्डिटी भी कहूंगा। एब्सर्डिटी बेसिकली है ही कंफ्यूजन। ठीक है, एब्सर्ड मीन्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग। सो एब्सर्डिटी इज वन ऑफ द की थीम एंड मॉडर्न नॉवल, which is very much related to truth and reality of the subjectivity of reality. So the caves themselves they became a symbol of this uncertainty. Did something happen to Adila, or was it all a misunderstanding? We never get a clear answer in this novel, and that is the point. Foster is showing us that in a modern world, truth is often subjective and fragmented, and it depends on who's telling the story. तो एक बंदा जो है वो उसके लिए ट्रूथ कुछ और होगा, किसी और के लिए ट्रूथ कुछ और होगा। तो ये जो रिलेटिविटी है या रिलेटिव ट्रूथ है या मल्टीपल ट्रूथ्स आप कह सकते हो, इन्हीं को हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ। तो इट इज another key feature of modernism or modern novel particularly. Then we have
a critique of empire and colonialism in this novel. So, of course, a passage to India is a powerful critique of British colonialism, and this is an other way it aligns with modern literature. Modern novels ये often सवाल करते हैं अक्सर कि established order क्या है. Foster novel is no different. He exposes the racist attitude of the British colonial officials, the hypocrisy of their civilizing mission कि भाई हम तो सबको सिविलाइज करना चाहते हैं. जो एक वाइट मेंस बर्डन आप कह लो या वाइट सुप्रीमेसी है वो बड़ी प्रोमिनेंट है इसमें कि बज़ाहिर तो वो सिविलाइज करने आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे आके बारबेरिक होके बिहेव कर रहे हैं, इनह्यूमेन मैनर में ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, गैर इंसानी तरीके से उनके साथ जुल्म सितम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेसिस्ट हैं, ये इंडियंस हैं ये. और इसकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो हमारे सामने रोनी हैस्लॉप की शक्ल में है. ठीक है. तो वायलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है जब एक नेशन दूसरी नेशन को आप कह लो कि डिप्राइव करती है, या जो कॉलोनियलिज्म में यही है कि एक नेशन जब दूसरी नेशन को सप्रेस करती है तो वायलेंस क्रिएट होता है. ठीक है. उसके बाद यही चीज हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्लब का जो है यहाँ पे चंद्रापुर में ब्रिटिश कैरेक्टर्स जो हैं वो सोशलाइज करते हैं, कंप्लीटली सेग्रीगेटेड हैं फ्रॉम द इंडियंस. आप देखो कि इंडियंस नीचे खड़े हुए हैं, ब्रिटिश क्लब के लोग जो हैं ऑफिशियल्स वो ऊपर खड़े हुए हैं. तो ये एक सेग्रीगेशन हमें इसमें देखने को मिलती है. सो colonialism इज नॉट प्रेजेंटेड एज अ नोबल थिंग बट रादर एज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इग्नोरेंस इन दिस नॉवल. ब्रिटिश कैरेक्टर्स जो हैं in most of the cases they are clueless about Indian culture. They cannot comprehend, they cannot able to understand what Indian culture is all about. और वो रियल इंडिया इसलिए कहते हैं बार बार कि मिसेस मोर भी कह रही हैं और मेडल कह रही हैं कि यहाँ पे एक ये एक तरह से जो ट्रूथ है वो सब्जेक्टिव है. और इसमें आपको ये भी देखने में मिलता है कि सेंटेंस कि आई थिंक डॉक्टर अजीज कहता है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल इंडिया. So the British over here in Chandrapur in this novel, they are clueless about Indian culture and they make no effort to understand it. ठीक है. ऑल दो एडिला और मिसेस मोर का इंटरेस्ट है लेकिन हमें पता चलता है कि बाकी लोग जो हैं वो इतनी कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे. मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल. दिस disconnect is central to the novel's tension and is a hallmark of modern critics of power and empire. कि मॉडर्निज्म में जो पावर और एम्पायर का कॉन्सेप्ट है वो यही है असल में बिलखसूस, कि आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे अगलों के, बल्कि आप अपना कल्चर जो है वो इम्पोज कर रहे हो दूसरों पर. फिर हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डेप्थ और हमें कौन सी मॉडर्निस्ट टेक्निक्स हैं जो इस नॉवल में हमें मिलती हैं. आपको पता है कि जो मॉडर्निस्ट टेक्निक्स हैं, एक तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जो राइटर ने यूज किया इस नॉवल के अंदर, बड़ी प्रोमिनेंट है. पूरा नॉवल जो है उसमें आपको ढेर सारी एग्जांपल्स मिलेंगी बिलखसूस अजीज की कैरेक्टर्स में कि उसके माइंड को कैसे वो जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें थी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था मॉडर्निज्म में, उसी तरीके से उनका जो नैरेटिव स्टाइल है वो भी फ्रेगमेंटेड है, एब्स्ट्रैक्ट है, सॉरी. Foster he employs several techniques that are associated with modernist literature. एक तो इसने कैरेक्टर्स को आप देखो कि ये इनर थॉट्स की बात कर रहा है, मोटिवेशंस की बात कर रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स हैं कैरेक्टर्स की. एंड दे ऑफन स्ट्रगल विद इमोशनल एंड मॉरल कंफ्यूजन. मतलब कि अजीज जो है वो इस मॉरल कंफ्यूजन का शिकार है, एक इमोशनल कंफ्यूजन का शिकार है कि भाई वो क्या ब्रिटिश और इंडियंस की दोस्ती मुमकिन है या नहीं. एडीला जो है वो अपनी एक टेंशन का शिकार है, उसमें भी आपको एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके थॉट्स में कि भाई क्या हुआ था मेरा केव्स में. फील्डिंग जो है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि अजीज जो है वो कुछ इस तरीके से कर सकता है. उसका मानना यही है कि भाई उसको झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है, उसको एक्यूज किया जा रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है. मिसेज मोर जो है वो खुद कुछ कंफ्यूज है, वो शी इज सीकिंग ट्रूथ, शी इज सीकिंग स्पिरिचुअलिटी, येट शी इज अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस थिंग. तो ये सारी चीजें हमें इनमें देखने को मिलती हैं. तो जो इनर टर्मोइल है, it is captured through Foster's use of indirect discourse, where we are not just seeing actions, but we are also uh, going into the inner thoughts and feelings of the characters. ठीक है. अब आप देखो कि जो मॉडर्निस्ट नॉवेल्स हैं उसमें रियलिटी और जो इमेजिनेशन है उसकी बाउंड्री को ब्लर किया जाता है. मॉडर्निस्ट नॉवेल्स दे ऑफन ब्लर द लाइन between what's real and what's imagined. A Passage to India does this brilliantly. Experiences of the Marabar caves, for example, is as much a psychological event as a physical one. क्यों? क्योंकि the echo that Adila hears seems to break down her sense of self and reality.
वो खुद जो है वो एक सवाल बन के रह जाती है, एक एग्जिस्टेंशलिस्ट क्वेश्चन उसके माइंड में आ जाते हैं कि वहां पे हुआ क्या है। तो ये एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट का जो है बहुत प्रोमिनेंट इसमें थीम हमें देखने को मिलता है। जो निट्शे का कॉन्सेप्ट है इसका, कि भाई आप कह लो कि देर इज नो गॉड मादल्ला, ठीक है, कि कोई रियलिटी या ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिव है। वो हमें इस एडिला के इंसिडेंट में देखने को मिलते हैं, मेराबर केव्स। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेरेमनीज भी यहाँ पे अगर हम अगला इसका देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न नॉवल में किस तरीके से दिखाया जाता है स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को। तो फोस्टर जो है उसने बहुत से क्वेश्चंस स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पे इसमें दिखाए हैं हमें इस नॉवल के अंदर। टेंशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अजीज जो है वो एक इंडियन मुस्लिम है। हिंदुइज्म जो है वो हमें प्रोफेसर ये गॉड पॉल जो है इसका करेक्टर इसमें बड़ा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। ये बहुत स्पिरिचुअल है। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है जो नॉवल का, द टेम्पल, जिसमें अजीज जो है वो एक इंडियन स्टेट में जाता है। मतलब कि जब अजीज को पकड़ा जाता है तो वहां पे उसके रिलेशन जो है वो इंडिया में चंद्रपुर के अंदर अजीज के ट्रायल के बाद जब उसको आजाद किया जाता है, तो हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशंस दिखाए गए हैं वो पीसफुल दिखाए गए हैं, वो ठीक दिखाए गए हैं कि उनमें आपस में इत्तेफाक है। लेकिन अजीज जो है वो इस ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से दूर जाने के लिए, इन ब्रिटिश पीपल से दूर जाने के लिए, ब्रिटिश से दूर जाने के लिए वो क्या करता है कि वो एक नई स्टेट में चला जाता है जो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है। और वहां पे एक इवेंट भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पे एक फेस्टिवल हो रहा है। तो रिलीजन का भी इसमें आपको एलिमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंटली। येट इट डज नॉट फुली एंडोर्स एनी वन ऑफ देम, किसी रिलीजन को ये एंडोर्स नहीं करता इस नॉवल में। इंस्टेड इट पॉइंट्स टू द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब प्रोफेसर गॉडबॉल जो है वो एक हिंदू मिस्टिक कैरेक्टर्स है, ठीक है, मेडिटेटिंग कर रहे हैं, किसी रिलीजियस सेरेमनी में एंगेज हैं। तो थ्रू कैरेक्टर्स लाइक प्रोफेसर गोडपोल, फोस्टर ने बताया है हमें कि किस तरह की स्पिरिचुअल एम्बिग्युइटी थी उस वक्त मौजूद। गोडबोल्स का जो हिंदू मिस्टिसिज्म है वो सजेस्ट करता है कि यूनिटी दैट ट्रांसेंड्स कल्चर एंड रिलीजियस बाउंड्रीज, बट फोस्टर लीव्स इट ओपन एंडेड, ठीक है, ताकि रीडर्स जो हैं वो खुद जो है इन मिस्ट्रीज को, एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज को जो है वो सर्च आउट करें, इस पे सवाल उठाएं, ठीक है, विच इज अनदर मार्कर ऑफ मॉडर्निज्म या मॉडर्न नॉवल। फिर हम देखते हैं कि जो एम्बिग्विटी हमें लास्ट में देखने को मिलती है कि एम्बिगुअस एंडिंग्स होती हैं मॉडर्न नॉवल के अंदर, या रेजोल्यूशन, लैक ऑफ रेजोल्यूशन। हमें पता है कि जब कोई कहानी खत्म हो रही होती है तो इसमें प्रॉपर रेजोल्यूशन होता है। मॉडर्न नॉवेल्स जो होते हैं दे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे लैक दिस प्रॉपर रेजोल्यूशन इन in their works. So finally, one of the most modern element of Passage to India is its ambiguous ending. ट्रेडिशनल नॉवेल्स क्या करते हैं, दे ऑफन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स नीटली, ठीक है, मतलब कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है। अब इस नॉवल में मेजर इशू क्या है, ब्रिटिश और इंडिया के दरमियान, ब्रिटिश और इंडियंस के दौरान जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमें एंड में भी देखने को मिल रहा है, मतलब उसे रिजॉल्व नहीं किया गया। ट्रेडिशनल नॉवेल्स जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर रिजॉल्व कर दिया जाता है। सो इस नॉवल के एंड में क्या है कि फ्रेंडशिप बिटवीन फील्डिंग एंड अजीज, इट रिमेन्स फ्रैक्चर्ड, क्योंकि वो एक पार्ट टू में जब उनकी आपस में दोस्ती खराब हुई है तो एंड तक हमें देखने को मिलता है कि उनमें आपस में इख्तलाफ है। इट सिंबलाइजेज द लार्जर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू रिकंसाइलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन वर्ल्ड्स अंडर कोलोनियलिज्म, क्योंकि वो बताता है, वो कहता है कि हम, हमारे बीच में सारे इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं जब, तो मसला कहाँ आ रहा है, हम दोस्त क्यों नहीं रह सकते। तो अजीज कहता है कि हम दोस्त इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि जब तक ये कोलोनियलिज्म होगा तब तक तो हम दोस्त नहीं रह सकते। तो जो रिकंसाइलेशन की जो ट्रू होप थी या कोई उसके कोई एक्सपेक्टेशन थी, वो यहाँ पर दम तोड़ते हुए हमें दिखाई देती है। सो this lack of resolution, yeah, this refusal to tie everything up neatly is very much in line with the modernist literature, yeah, modern novel. Foster here seems to be saying that in the modern world, especially in a colonized world, some conflicts are too deep and too complex to be easily solved. ठीक है, सो अगर हम इसको सम अप करें तो पैसेज टू इंडिया जो है वो एक मॉडर्न नॉवल है, बिकॉज इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नैरेटिव्स। इसने नैरेटिव स्टाइल को चेंज किया, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चंस colonialism, ये भी एक मॉडर्न थीम है। इट प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड वेयर ट्रूथ इज फ्रेगमेंटेड
एंड आइडेंटिटी इज इन फ्लक्स। मतलब एक इंसान की आइडेंटिटी या शनाख्त वो तब्दील होती जा रही है। पहले जॉली होता है, बाद में रूड हो गया है। साइरल फील्डिंग पहले जो है वो बड़ा थोड़ा सा रूड होता है, बाद में जॉली हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, और उसके बाद जो है वो खुद एलिनेटेड हो जाता है। इस तरीके से एडीला क्वेस्टेड का जो कैरेक्टर है वो भी शिफ्ट, उसमें भी हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस नजर आते हैं। सो इट्स अ नॉवल दैट रेजोनेट्स विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉडर्न एज, and its relevance has not diminished. If you haven't read it yet, I highly recommend कि आप इस novels को पढ़ो, इस Passage to India को जरूर पढ़ो। और if you enjoyed this video, please don't forget to hit the like button or subscribe for more deep dives into literature. And you must leave a comment with your thoughts on A Passage to India. आपको इसमें क्या अच्छा लगा, या आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो प्लीज ड्रॉप your questions. Thank you so much. Allah Hafiz.